I can only say through my experience, and I think in 2011 in October I decided to quit TV, and I was thinking of going somewhere else. But in the next 3 months I got Kai Po Che, and from then onwards till now, all the films that I've released and all the films that I've signed for next 1.5 years, these are the films that I really wanted to do. Not because there are like no options, but these are the films that I really wanted to do. So having this luxury of choosing the kind of scripts and projects out of many, so I cannot complain. So it's my personal experience. Having said that, well, yes, nepotism is there, and it's everywhere. It's just not in Bollywood. And so yeah, so we can't do anything about it. But yes, so nepotism can coexist and nothing would happen. But at the same time, if you deliberately don't allow right talents to come up, then there is a problem. Then the whole structure of the industry would collapse one day. But till then, it's fine. Nepotism can coexist with all the talented people also starring at the same time, and you'll get wonderful films because they will be competing with each other, and they will raise the performance. All right, thank you. Thank you. Thank you. Sorry. Sushant, how do you compare the IFA awards with all the awards happening around the year? And most important factor, you said the fact that it's getting held all over the country. So in 16 years of my schooling, I used to avoid these questions. Compare this with that. No, There's a very elaborate answer. IFA has created its identity. All these years. So I answered that. That was my first answer. It's got a very special place in my heart because for an introvert like me, who would not talk for first 18 years of his life, suddenly he's on stage and is dancing behind all these great, wonderful superstars, dancing behind Shah Rukh and Hrithik and all in 2005 or 6, and that was the first time I realized that wow, this feels so good, and that was IFA 2005, 2006, and so yes, that was a very special place. All over. Thank you. Thank you. सर सुशांत सर वहीं पर सुशांत सर एकदम मस्त अरे सर अरे यार तुम लोग थोड़ा ही बाजू आ जाओ, एक मिनट भाई बाजू में आना यार, पीछे का मोबाइल, अरे यार 1 मिनट यार, सुशांत सर ये बाजू जल्दी 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 ले ले, अरे सर 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 हमको नहीं मिला सर, हमको अरे हट जा अभी हो गया, वेट सुशांत सर थोड़ा पीछे स्टार्ट करो नहीं सर बलून का पैसा देना सर यहाँ पर बस सुशांत सर यहाँ पे सेल्फी अपना वाला है सुशांत सर 1 मिनट रुको ना सर 1 मिनट नहीं मिल रहा है सब
पीछे थोड़ा पीछे हाँ रुको 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 बस 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 थोड़ा पीछे बस यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस से महेंद्र सिंह धोनी पर किस तरह का असर हुआ है और क्या कर लिया है महेंद्र सिंह धोनी ने, चलिए आपको बता देते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। महेंद्र सिंह धोनी जिनके साथ सुशांत का एक बहुत ही गहरा रिश्ता था, अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म यानी कि MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जिसने अलग लेवल पर पहुंचा दिया सुशांत सिंह राजपूत को और उनकी एक्टिंग को। इस फिल्म में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का कैरेक्टर प्ले किया था। बायोपिक थी ये धोनी की। ऐसे में बात की जाए अगर धोनी की, तो जब से उन्होंने इस खबर को सुना है, अपने आप को उन्होंने आइसोलेट कर दिया है। जी हाँ, जिस दिन से ये हादसा हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत ने अपने आप को फांसी लगाई है, उस दिन के बाद से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने आप को आइसोलेट कर दिया है घर में, और वो अपनी फैमिली मेम्बर्स से भी बात नहीं कर रहे हैं। ये बात महेंद्र सिंह धोनी के मैनेजर ने इस बात को कहा है। मैनेजर ने इस बात को कहा कि धोनी ने अपने आप को आइसोलेट कर दिया है, वो फैमिली मेम्बर्स तक से बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 1 साल तक धोनी और सुशांत ये दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और पूरा 1-1.5 साल तक इन्होंने बायोपिक पर काम किया था। सुशांत वॉज वेरी कीन टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम धोनी एंड साथ ही साथ बहुत बड़े फ़ैन भी थे वो महेंद्र सिंह धोनी के। ऐसे में धोनी भी काफ़ी करीब थे सुशांत सिंह राजपूत के, और ये खबर आना अपने आप में चौंका देने वाली बात है। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। फरवरी 2020 में KRK ने सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट अब सुर्खियां बटोर रहा है क्योंकि अब ऐसा कुछ हो चुका है जिसको हम वापस नहीं कर सकते। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। ये ट्वीट मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से इस ट्वीट में KRK ने साफ लिखा है दैट इंडस्ट्री हैज बॉयकॉट सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ, इंडस्ट्री ने यानी कि बिग क्लैंस ने, बी इट सलमान खान, बी इट करण जौहर, बी इट यश राज, बी इट बालाजी, बी इट धर्मा प्रोडक्शंस, बी इट दिनेश विजान, इन सभी बड़े नामों ने, इनफैक्ट बी इट संजय लीला भंसाली, इन सभी नामों ने सुशांत सिंह राजपूत को बॉयकॉट कर दिया था। और ये कहा गया उस ट्वीट में कि इसके बाद से ही विल ओनली बी एबल टू वर्क इन वेब सीरीज या फिर टेलीविजन, फिल्मों में उन्हें काम नहीं दिया जाएगा। इस तरह का एक बहुत ही दिल दहला देने वाला ट्वीट अब सामने आ रहा है, जो कि तमाम सवाल खड़े कर रहा है कि ये क्या था। अगर ये सच था तो फिर किस हद तक सच था, और अगर ये झूठ था तो फिर क्यों सुशांत इतना अकेले पड़ गए कि उनके हाथ से महज 6 महीने के टाइम ओवर में उनके हाथ से 6 बड़ी बिग बजट की फिल्म्स उनके हाथ से निकल गई। कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि उनकी जान कैसे गई, वो उन्होंने खुद ली, लेकिन क्या रीजंस थे ऐसे कि वो इतना अकेले पड़ गए, इतना अच्छा बैंक बैलेंस, इतनी अच्छी लाइफ होने के बावजूद। ये सवाल हर किसी इंसान के लिए है, ये आप भी सोचिए, और डेफिनेटली ये सवाल उठना चाहिए इंडस्ट्री पर भी, और ये सवाल उठना चाहिए हर उस फैन पर जो रियल टैलेंट को पहचानने में शायद थोड़ी सी देर कर देते हैं। आपकी क्या राय है इस चीज़ पर, आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। सुशांत सिंह राजपूत वॉज इंडीड अ प्योर सोल। जी हाँ, सिर्फ प्योर सोल ही नहीं बल्कि वो एक बहुत ही यूनिक इंसान थे, एक यूनिक पर्सनालिटी थी उनकी। जिस तरह की बातें वो करते थे, जिस तरह का एक वर्चस्व था उनका, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्योर और डिफरेंट था बाकी लोगों से। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उन्हें स्पेस के बारे में बात करना, न्यूरो साइंस के बारे में बात करना, स्टार्स के बारे में बात करना, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करना, फ्यूचर के बारे में बात करना, साथ ही साथ रिलीजन के बारे में बात करना, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने में वो बहुत फैसिनेट होते थे, बहुत उन्हें अच्छा लगता था। इंटेलिजेंट टॉक्स करना, ही वॉज अ रीडर, ही वॉज अ थिंकर। अब ऐसे में सुशांत जो है, उन्हें चीज़ों का बहुत शौक था, उन्हें कलेक्टिंग का बहुत शौक था, वो भी यूनिक चीज़ें कलेक्ट करना। अगर आप उनके घर की भी वीडियो देखेंगे जो कि इस वक्त यूट्यूब पर अवेलेबल है और काफ़ी वायरल भी हो रही है, उनके घर की वीडियो जो हाल ही में उन्होंने लिया था, जो कि एक बांद्रा में था, एक घर जो बांद्रा का घर था, उस घर की कीमत करोड़ों में थी। जी हाँ, बांद्रा में सी फेसिंग का घर था और हाल ही में उन्होंने लिया था, दिसंबर में उस घर में शिफ्ट हुए थे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि ये सारी बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ उनके नेट वर्थ की। सुशांत सिंह राजपूत की
नेट वर्थ 59 to 60 करोड़ की थी, जो कि अपने आप में बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। इतना बड़ा नेटवर्थ होने के बावजूद एक इंसान किस तरीके से चीज़ों से जूझ रहा था, ये कोई नहीं देख पाया। उसके अलावा मैं बात करूँ पर फिल्म, अगर सुशांत सिंह राजपूत की बात की जाए, पर फिल्म सुशांत चार्ज करते थे अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 5 to 7 करोड़। उसके अलावा उनके पास गाड़ियों का भी बहुत खूब कलेक्शन था, बिकॉज उनको घर के अंदर चीज़ें तो कलेक्ट करने का शौक ही था। उनके घर के वीडियो में आप देखेंगे कि उन्हें उनके घर में टेलीस्कोप था। जी हाँ, वो जब अकेला फील करते थे या जब वो चाहते थे कि किसी को देखना है या शायद अपनी मॉम को देखना है, तब वो टेलीस्कोप का यूज़ कर कर सितारों को देखते थे, उनसे बातें क्या करते थे। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि गाड़ियों का भी उन्हें बहुत ज़्यादा शौक था। उनकी गाड़ियों में से सबसे ज़्यादा कीमती गाड़ी जो उनकी थी वो थी मसराती। जी हाँ, 1.5 करोड़ की एक गाड़ी थी उनके पास। उसके साथ साथ उनके पास और भी 2 गाड़ियाँ यानी कि रेंज रोवर और SUV थी, जो कि 50-50 लाख के तकरीबन इन गाड़ियों का जो है गाड़ियों की कीमत थी, गाड़ियों की वैल्यू थी। उसके साथ साथ उनको बाइक्स का भी बहुत शौक था। जर्मन बाइक्स भी अपने साथ रखते थे सुशांत सिंह राजपूत। एक कलेक्टिव इंसान जिनको यूनिक चीज़ें, जिनको अतरंगी चीज़ें कलेक्ट करने का जो है एक हॉबी थी, अब वो हम सबको क्वेश्चन मार्क में छोड़कर जा चुका है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, या आप हमें कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में।